Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class student. Today date is 3rd September 2021 and I am teaching you chapter number 8. Our chapter number 8, our clothes. So now student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video we have completed the book exercises of the chapter, that is question number C, match the following, then question number D, true or false, then question number E, write short answers to the following question. This question also we have completed in our classwork copy. Now in today video we will complete question number F, that is give detailed answer to the following questions. So all of you take out your book, open page number 52 and take out your classwork copy. Today we will complete long question answer of the chapter. Question number F, give detailed answers. Question number 1, how are clothes made? So see how the clothes are made, student. So the clothes are made of lot of different material. For example, cotton clothes, they are made from the cotton, and this cotton we will collect from the cotton plant. Okay, so clothes are made of different material. For example, from the cotton plant we get the cotton, and from this cotton we make the clothes. Woolen clothes are made with the wool. ठीक है. Different types of jackets which are made of a leather jacket which you wear in the winter season. So these are the collected from the skin of the animals. ठीक है. And from silkworm you get the, we make the silk clothes. From the silkworm we make the silk clothes. And rayon and nylon, these are the clothes which are made by man, or you can say synthetic clothes. So in this manner different type of clothes are made. Is it clear? In this manner different type of clothes are made. So note down the answer. Clothes are made from lots of different materials. Okay, some materials like leather,
leather, like leather are made from animal skin, animal skins, cotton made from CO, from cotton plants, silk made from cotton, made from cotton plants, silk made from silkworm, woolen clothes made from woolen clothes made from wool, then nylon or rayon made from crude oil. Okay, so clothes are made from lots of different materials. Some material like leather are made from animal skins, cotton made from cotton plants, silk made from silkworm, woolen clothes made from wool, nylon or rayon made from crude oil. So different materials are used, student, for making the clothes. Different material are used for making the clothes. You can take a screenshot. Question number 2. Make a question 2. Make a web titled from fiber to fabric. So we have to show first fibers are collected, then we have to write in which manners फाइबर आर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए फैब्रिक. फैब्रिक पता क्लोथ फॉर्म में कैसे चेंज होते हैं. तो सबसे पहले जो फाइबर्स होते हैं उसकी स्पिन करके हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, थ्रेड्स बनाते हैं. ठीक है.
उसको स्पिन करते हैं, स्पिन करके उस फाइबर का, सबसे पहले फाइबर होता है हमारे पास रॉ मटेरियल, उसको हम लोग क्या करते हैं स्पिनिंग के द्वारा, बाय द मेथड ऑफ स्पिनिंग वी चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ ए थ्रेड और यार्न, जो भी आप बोल सकते हो। उसके बाद उन थ्रेड्स को क्रिस क्रॉस करके उनसे वेविंग की जाती है, मतलब अब क्या बना, उससे क्लोथ बन जाता है। ठीक है, क्लोथ बन जाएगा तो आफ्टर दैट अब हम उसको क्या करते हैं, डाई करते हैं, डिफरेंट कलर्स के डाई। एक हॉट वेसल में हॉट वाटर में हम लोग कलर्स मिक्स करते हैं एंड देन वी पुट दैट क्लोथ इनटू दैट hot vessel, hot water vessel in which the colors are mixed. So in this manner colors में different dyes आते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट प्रिंटिंग होता है डाई के बाद, डिफरेंट पैटर्न फॉर्मेट आप लोग डिजाइंस बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिनिशिंग है, फिनिशिंग में ये देखते हैं कि क्लोथ व्रिंकल तो नहीं हो रहा है, तो वो फ्लपी है कि नहीं, स्मूथ है कि नहीं, क्योंकि जब भी आप बेटा जाओगे शॉप पे न्यू क्लोथ्स देखोगे, न्यू क्लोथ्स बहुत ही सॉफ्ट होता है, बिल्कुल प्लेन मिलेगा, कहीं से वो मुड़ा नहीं होता है एक चीज, और दूसरा वो क्या होता है बेटा बहुत सॉफ्ट होता है उस समय क्लोथ। इज इट क्लियर? सो एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप किसके पास लेके जाओगे क्लोथ्स को, टेलरिंग, फिर टेलर विल कट द क्लोथ्स एंड फिर वो जो आप बोलोगे, जिस टाइप का आप डिजाइन बोलोगे वैसा आपका पैंट शर्ट या कोई भी कपड़ा जैसे आपका, ही टेक द साइज ऑफ योर बॉडी एंड आफ्टर दैट ही कट द क्लोथ्स एंड मेक न्यू क्लोथ्स फॉर यू। सो दिस इज द फुल वेब टाइटल फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइबर। First step is fiber. Then what we do, spinning of fiber. Spinning of fiber. So by spinning of fiber, next step it change into a thread or you can say yarn also. Both meaning are same. So it is changed in the form of a thread. Then what we do, weaving of yarn. Okay, then the next step is after weaving it changed in the form of a fabric, now it changed in the form of a cloth. Now when the cloth is made, now the next step is dye. Okay, we give different color to the cloth, that is known as dyeing. Okay, after this printing, different pattern or designs are made on the clothes. Then the next step is the finishing. In this we check whether waterproof, ठीक है, वाटर में इसे चेक करते हैं कि क्लोथ कहीं श्रिंक तो नहीं कर रहा है, कहीं छोटा तो नहीं हो गया धोने पे, ठीक है, उसमें व्रिंकल्स तो नहीं पड़ रहे हैं, और फ्लपी मतलब वो स्मूथ है कि नहीं, तो फाइनल ये सब चेक होता है बिफोर इट कम इन द मार्केट टू सोल्ड। एंड फिनिशिंग के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, टेलरिंग। So this is the web title from fiber to fabric. Is it clear? Fiber है, spinning of fiber. Then firstly this is the raw material fiber. It is spin in the form of a, so first step is spinning of fiber. Then it change in the form of a yarn or thread. Both meaning are same. Then weaving of a yarn. Here weaving of yarn. Now the threads are changed in the form of a fabric. It become a cloth. Now what we do, we give a different color to the cloth. This is known as dyeing. And after giving different color to the cloth, we do printing. Different designs are print on the cloth. And then finishing, final check of the cloth. And then it goes to the
for the tailoring. Is it clear? So note down. You can take a screenshot. Now next question is, what are looms? Question 3, what are looms? Okay, what are looms? Why are they important? Why are they important? Okay, so what are looms and why they are important? तो लूम्स क्या है बेटा? बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मैन मेड मशीन्स हैं, जहां पे थ्रेड को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं? फैब्रिक फॉर्म में, उसको वेविंग हो रही है, ठीक है, इनटू फैब्रिक बाय वेविंग ऑन अ बिग मशीन्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लूम्स बोलते हैं। और व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज लूम क्रिस क्रॉस द लॉन्ग थ्रेड्स टू वेव देम इनटू फैब्रिक और क्लॉथ, ठीक है। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां बहुत सी मैन मेड मशीन्स हैं जहां पे थ्रेड को हम किस फॉर्म में चेंज करते हैं? फैब्रिक फॉर्म में, क्लोथ बनाते हैं, ठीक है। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज लूम क्रिस क्रॉस द लॉन्ग थ्रेड टू वेव देम इनटू अ फैब्रिक और क्लोथ। सो नोट डाउन द आंसर। The yarn or you can say thread also. A yarn or thread is made into fabric by weaving on big machines, called looms. Why is it important? So these looms crisscross the long threads to weave them into a fabric or cloth. So what are the looms? Why are they important? The yarn or thread is made into fabric by weaving on big machines. These machines are called looms. Okay.
Next is these looms crisscross the long threads to weave them into a fabric or clothes. So this is the importance of the loom. So this is the importance of the loom. You can take a screenshot also. So student, we have completed chapter number 8. All books exercise, question answer we have completed. So now we will start a new chapter, that is chapter number 9. Air we breathe. Okay, now we will start a new chapter and name of the chapter is Air we breathe. So first of all student, let us discuss what are the learning objectives of this chapter. It means what, after the study of this chapter, what are the things we are able to understand. Okay, learning objectives of the chapter are very important because these are the guidelines which tell you. ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए गाइडलाइंस होते हैं बेटा, जो बॉक्स के अंदर लिखे होते हैं. इससे आपको ये पता चलता है बेटा कि व्हाट थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. ओके, so first learning objective is given the importance of ear. Why the ear is very important for us. Okay, I hope every one of you know this, because we all are living things and our life is possible due to oxygen, and oxygen is also present in the air because air is a mixture of gases. ठीक है, एयर क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. और आप सबको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बिना ऑक्सीजन के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और वी आर गेटिंग दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. हमें ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि एयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक है, अगर एयर नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो हमारी लिविंग गैस है वो इसी एयर में है, क्योंकि एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं सब बताऊंगा कि जो एयर है, एयर में कितने परसेंट कौन गैस सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है, फिर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं उनकी क्या परसेंटेज है, वाटर वेपर भी एयर में होते हैं, क्योंकि जब सन की हीट से वाटर इवापोरेट होता है, इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए गैसियस फॉर्म, जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं. तो ये भी एयर में प्रेजेंट होता है. एयर में वाटर भी प्रेजेंट होता है. किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसियस फॉर्म में, जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं. ठीक है, तो ये पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. नाउ आफ्टर दैट सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. एयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे तुम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे ना, लिविंग थिंग्स. हम कोई भी चीज को लिविंग थिंग्स क्यों बोलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट इज द रीजन वाई से लिविंग थिंग. तो हम बोले कि लिविंग थिंग क्या, दे नीड फूड, दे ग्रो, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, इसलिए हमने उनको क्या बोला, वो लिविंग है. इसी तरह एयर की भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. जिस तरह लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक थी, जिसके बेस पे हमें उन्होंने लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से हमने क्या किया, डिफर किया. तो एयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो इस थर्ड पॉइंट है यूजेस ऑफ एयर इन आवर लाइफ. व्हाई एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ एयर, दैट आल्सो वी विल डिस्कस. नेक्स्ट
लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हाउ इज एयर पॉल्यूशन काज्ड एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इज। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये यही है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, व्हाट हैपेंस, वी कट लॉट ऑफ ट्रीज to make land free for cultivation, because due to increase in the population demand of the food also increase. That is the reason we cut a lot of trees, and cutting of trees is known as deforestation. Or even we need land for making the houses also. So due to human activities the balance, environment का जो balance है वो क्या होता जा रहा है, गड़बड़ होता जा रहा है। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमारे प्लेनेट से रिलेटेड वो यही हैं। एयर पॉल्यूशन का रेट बहुत इंक्रीज होता चला जा रहा है। एयर पॉल्यूशन हो गई, आपकी वाटर पॉल्यूशन हो गई, लैंड पॉल्यूशन हो गई, एंड वी हैव टू रिड्यूस दिस। सो यहाँ पे तो एयर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ सी all living things need air. ठीक है, so life of any living thing is possible without the air. So what is the answer? Answer is no. Without air we cannot survive only for a few minutes. अगर हम सांस बाई चांस आप अपनी सांस रोक के देखो बेटा, ठीक है, आप अपने से, दूसरे से मत बोलना रोकने के लिए, अपने से अपनी सांस रोक के देखो। ठीक है, अपने नोज पे फिंगर रख लो, माउथ भी बंद रखो, आप अपनी सांस को रोक के देखो। आप ब्रीथ किए बिना रह ही नहीं सकते। अगर हम फ्यू मिनट्स के लिए बिना ब्रीथिंग के रह गए तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो दैट इज द रीजन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एयर हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब एयर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो एयर इज प्रेजेंट एवरी ईयर। ठीक है, एक लेयर ऑफ अर्थ, ए लेयर ऑफ एयर है जो अर्थ के चारों तरफ है, जिसको हम लोग ने क्या पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, एटमॉस्फेयर। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर अब यहां पे तो हमने लिखा है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। ओके, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और आप इसी डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हो, ए लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ। ठीक है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ अर्थ। इसीलिए हमने क्या बोला, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस इसलिए वर्ड यूज किया है कि एयर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, एयर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंट हैं, ये अभी चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे। अगर देखो तो सबसे ज़्यादा एयर में जो प्रेजेंट गैस है वो है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, और फिर अदर गैसेस है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और अदर गैसेस कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब एयर क्या है बेटा, एयर को जान लो। एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और हमारे लिए जो गैस बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब एयर क्या है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि क्या आपने कभी एयर को देखा है, हैव यू सीन द एयर, सिंपली आंसर होता है नो, हमने कभी भी एयर को देखा नहीं है। हाँ, बट वी कैन फील इट। जब बहुत तेज हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगते हैं, उसी को क्या बोला, रैटल। ठीक है, सो वी नोटिस दैट व्हेन द लीव्स ऑफ ट्री रैटल्स। सो जब पेड़ों के हम फील कैसे करते हैं, जब बहुत तेज हवा चलती है तो आप लोग देखते हो पेड़ों की ब्रांचेस भी स्विंग होने लगती है, और उसके संग जो लीव्स लगे होते हैं वो भी बहुत तेज तेज हिलने लगते हैं। इससे हमें लगता है कि हवा बहुत चल रही है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम में स्टडी का काम कर रहे हो, ठीक है, आपने फैन ऑन कर दिया, तो आप देखोगे कि पेजेस अपने आप आपके बुक के चेंजेस होने लगते हैं, उसमें से भी साउंड आने लगती है। तो क्या वो हम कर रहे हैं कि कोई भूत आके कर रहा है? दैट इज एयर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।